Namaskar, this is Sonu Nigam, Hi, this is Jeet Ganguly. and you're watching Bollywood. Hangama. Sonu Nigam, one of my idols since childhood, someone who has been inspiring me and surprised me each and every time while singing. He killed it again as usual, in love with this song Dard from Sarabjit, and what a tremendous melody composed by Jeet Ganguly. Want to hear more of this duo? Respect. That's what Arijit Singh has said about the maestro Sonu Nigam and genius composer Jeet Ganguly and their song Dard, which is an outstanding melody from Sarabjit. First of all, huge pleasure to have you guys on Bollywood once again. Thank you. Thank you. And how do you feel that? I think a very wonderful way of just paying a homage from a junior singer as far as Arijit Singh is concerned. How do you react to that? Amazing. Arijit is उसको मैंने बहुत बचपन से देखा literally when he came for the first time in Fame Gurukul, and I remember when I saw him for the first time in that show, he almost fell down. So he is a good boy, and I also like the fact that besides being such a versatile singer, he also knows how to keep his exclusivity. So in a lot of ways I find him to be a very sensible young man with a lot of talent and a lot of acumen of keeping his exclusivity intact. And it's always good to hear good things from people who are doing so well right now. It inspires you in every way. But a lot of your fans, they're very happy that you're singing for movies like, say, once again, quite regularly now. So they're extremely happy with that. They would want much more of that. We've discussed that in the past, but I think your fans keep on asking for more. The sort of melody that somehow you bring to the table, we've spoken about in the past as well, that I think it's your innate love for music primarily, more than any other thing, or more the commercial aspect that many times people look into these days. Where is it that you had just, जिसको कहते हैं कि आपने ये गाना कहाँ से सजोया हुआ था? Because it really moves you. It really moves you at all levels. I think the way he sang is outstanding, but even the way music arrangements are, it's like really something else. Actually, the story of Sarabjit is very touching. Right. You know, इसमें जो passion है, इसमें जो दर्द है, वो actually वहाँ से ये गाना आया है. जी. और जब भूषण जी हमको फ़ोन किया from Germany, just few days back, उन्होंने कहा कि जीत मैं एक मुकड़ा भेज रहा हूँ आपको, just 4 or 5 lines, एक गाना बन सकता है इसके ऊपर. द मुकड़ा वाज वही मैं दर्दों को पास बिठा कर सो पंख अगर होते. हाँ, तो उनको पूछा मैंने क्या है मतलब गाना, मतलब बोले गाना जितना अब दर्द लेके बनाओ, मतलब ये सुनाओ उनको अभी. तो मैंने आधा घंटा लिया और उनको सुनाया, मतलब बहुत अच्छा गाना है, ये सरबजीत के लिए है. देन ही टोल्ड मी द एंटायर सिचुएशन एंड स्टोरी, क्या है, कैसे बनाना है. एंड आई थिंक होता है ना, उनका बहुत अच्छा कान है और सोच भी है भूषण जी का, तो वो सिचुएशन में ये गाना जा सकता है, ये मतलब ये लिरिक्स फिट हो सकता है, उनको पता था ये. एंड ही हैज़ दैट नॉलेज ऑफ म्यूज़िक. एंड उसके बाद गाना बनाने के बाद सब एक साथ हम लोग कहा कि सोनू जी गाएंगे ये गाना, और कोई नहीं गा सकते. और अगर सोनू जी नहीं गाते ये गाना तो गाना नहीं बनता डेफिनेटली. मतलब आज लिसनर्स, इतने सारे लिसनर्स फेसबुक में, ट्विटर में सब इतना प्रेज़ कर रहे हैं गाना, और कैसे करके रिकॉर्ड किया है गाना, और थैंक्स टू हिम, ग्रेटफुल टू सोनू जी. ऐसा हालत में उन्होंने गाना गाया है, जब उनका ऑपरेशन हुआ था तभी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था. You've sung Saw Dard from Jaane Man in the past, which I think one of your classic songs, and it will always remain like that. Somewhere, can we say that you have a lot of, I think any versatile artist should have various moods to just come up with. I think Rafi Saab had this wonderful, ability that be it sad songs, be it happy songs, he always had something new to offer to that. How do you look at this particular aspect? Because I've always maintained that, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में शायद मैं कहता भी हूँ that कल भी मैं किसी से मैं कह रहा था कि सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम एक तरफ, जो what you bring to the table is something else actually. आपको कुछ मतलब जिसको कहते हैं कि ऊपर वाले की आपके ऊपर कुछ है, that you have something which I think, and at the level of emotions primarily.
I think I've learned this from all the great artists of the world. जी Craft is craft, and there's a lot of technicality involved in any craft, whether it's painting, whether it's writing. For the writing, you have to know grammar, you see. But what good is grammar if you don't have the ethos or the real storytelling behind it? Mere vocabulary cannot make a great, great novel or great literature, whatever. Similarly, music is perhaps another expression of art and art forms. And what good is music with only notes and great words if you cannot really emote it and convey the message through your voice or through your rendition? So all the great people have done this, and I'm just following, and I'm trying to imbibe all those qualities in myself also. जी ये जो गाना हमने दर्द जो अभी मैंने गाया इनका जीत भाई का, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी यू आर मूविंग अराउंड विथ, हैंग अराउंड. तो सत्संग बोलते हैं ना, जो सत्संग वाली बात है, जिसके साथ में आप घूम रहे हैं आप वैसे बन भी जाते हैं. इफ द कंपोजर इज फ्रिवलस देन यू कम आउट विद फ्रिवलस स्टफ ओनली. इवन सिंगर्स ऑल्सो स्टार्ट. सो आई नो जीत भाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हिज फर्स्ट हिंदी फिल्म हैड मी for the entire album तेरे लिए. And over the years we have developed a very quiet, firm and a very intense and integral bond हमने build up किया है. ऐसा बहुत कम लोगों में होता है. You don't have to try. कोशिश नहीं करनी पड़ती कि यार दोस्ती बनी रहे, ऐसा नहीं होता. हम जहाँ भी कभी कभी बात भी नहीं करें, हम जब मिलते हैं तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए उतनी इज्जत, उतना प्यार होता है. So he's also a very emotional person. That is why he got his due very late. But correct मिला. अब जो मिल रहा है वो class के साथ में मिल रहा है. I always used to sing his songs earlier also, and he was not getting that many Hindi films. He used to do a lot of Bengali stuff. जी तभी बोलता था कि जो काम आप कर रहे हो, जब आप उसका टाइम आएगा ना तो छप्पर फाड़ के भगवान देगा, और ऐसा हो भी रहा है. बिल्कुल. तो ये जो गाना दर्द का जब इन्होंने मुझे सुनाया, मुझे भेजा था, तो मैं अपने फार्म हाउस में उस दिन पहुंचा ही था, रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए पहुंचा था. तो मुझे याद है मैं पूल साइड में बैठ के पापा के साथ में बैठा हुआ था, एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसे क्या बनाता है आदमी, कहाँ से इतने प्रोफाउंड नोट्स आते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिखाया जा रहा है कि उफ मैं ऐसा कंपोज़र हूँ, ये देखो मेरी ये कमर तोड़ कॉम्पोजिशन देखो, ऐसा नहीं है कुछ भी. बिल्कुल बिल्कुल. बड़प्पन, वो किसने बड़ा अच्छा कहा था, सलामत अली खान साहब ने मेहंदी साहब के लिए कहा था कि हम कूजे को समंदर दिखाते हैं और वो समंदर को कूजा में दिखाते हैं. ऐसा कूजा मतलब वो, शायद वो जो छोटा सा जो हाँ वो जो बर्तन हो छोटा सा, तो हाथों के उसमें, तो इनकी कॉम्पोजिशन बहुत बड़ी होती है और वो इतनी सी उसमें दिखा देते हैं अपना बड़प्पन. सादगी बहुत. तो और जो भी गाने आप सुनेंगे इनके, जो भी गाने हिंदी बंगाली जो भी सुनोगे आप, उनके गाने ऐसे हैं. एंड बस वो गाना बन गया, एंड वी वर लाइक, आई थॉट कि मैं उसी समय, क्योंकि मैं आया था फार्म हाउस में मेरे, मुझे भूषण ने फ़ोन किया, बोला आप आके कर दो गाने को, अर्जेंट है. देन आई टुक 3 days, इसमें 3 दिन के बाद में आता हूँ. देन आई वेंट बैक एंड डिड अ सॉन्ग. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मेरी सर्जरी को बस 12 दिन हुए थे, उस 12 भी नहीं, शायद उससे भी कम दिन हुए थे. एंड मैंने बैठ के इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही पहली बार गाना गाया इनका, ऐसे बैठ के. सो इट वाज द सॉन्ग केम आउट वेरी नाइस. उस दिन स्टूडियो में एक डिविनिटी थी अलग से, जो ऑल ऑफ अस मैंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फरीदुल, आपने जो कहा अभी ना, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. सोनू जी के बारे में, सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम जी एक तरफ. बिल्कुल. एक्चुअली काफ़ी सारे जो पुराने कंपोजर्स हैं ना, मिलते रहते हैं, डैडी के फ्रेंड्स हैं सब, तो बोलते रहे जी हमारे पास रफ़ी साहब थे, किशोर दा थे, अभी तो सिंगर्स नहीं है. तो मैं उनको कहा था कि कहता हूँ कि हमारे पास सोनू निगम जी है, सोनू जी है. बिल्कुल. आई एम फॉर्चुनेट कि वी हैव सोनू निगम जी. नो नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इट्स लाइक, मतलब इतने वर्सेटाइल, और ऐसा सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. नहीं सी ही इज अ ट्रेजर. देयर इज एब्सोल्युटली. एग्जैक्टली. जैसे लता जी हैं या आशा जी हैं, मतलब इट्स लाइक अ टू दैट लेवल. मतलब आई वुड से दैट द सॉर्ट ऑफ डेप्थ दैट ही हैज एंड द अमाउंट ऑफ, बोलते हैं ना, कंप्लीट म्यूजिशियन. जी. ही इज वेरी गुड कंपोजर, वी नो. जी. ही इज वेरी गुड म्यूजिशियन. क्या हारमोनियम बजाते हैं,
बाप रे कितना फास्ट बजाता है, कितना अच्छा बजाता है। और गाना तो छोड़ ही दीजिए, जब इन्होंने सारेगामा किया उतना अच्छे से किया है, हम सब जानते हैं। राइट। तो 100%। और एक चीज़ है कि कुछ दिन पहले सोनू जी के लिए हमको मौका मिला था एक सिंगल बनाने के लिए। जी जी गए जी शाम जी, हमने इनफैक्ट बात करी है उसके बारे में। हाँ, वी स्पोक टू सोनू जी। वो गाना जब मैं बना रहा था तो मैं सोचता ही रहा कि क्या बनाऊँ इनके लिए, जितना बनाऊँ उतना कम लगता है। तो बहुत सारा गाना मैं बनाना चाहता हूँ, सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए हमको कि सोनू जी के लिए अगर मैं लाइफ में और 20 गाना भी बना पाता हूँ, मैं इनके साथ जब भी बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ। बट आई थिंक यू नो इट विल बी लाइक रियली वंडरफुल बिकॉज जो आपकी डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ मेलोडी एंड द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, आई थिंक इट विल बी लाइक अमेजिंग एक्चुअली। बोलना नहीं पड़ता है भाई जी। मतलब जब गाना बनाते हैं और इनके सामने एक बार सुना दिया बस चुप, अगर मैं चला भी जाऊँ उतना अच्छा इन्होंने गाएंगे। और एक चीज़ याद आ रहा है उस दिन जब प्रिया गुप्ता जी थे रिकॉर्डिंग में, उमंग थे, संदीप भाई थे, तो सोनू जी जब गाना गा रहे थे शुरू किया दर्द, और इतना दर्द लेके उस टाइम तो ऑपरेशन हुआ था आई थिंक थोड़े दिन पहले। सो ऐसा लगा मुझे कि जब बेटी की शादी होती है ना, पराई घर चले जाते हैं, तो सब मुझे फील हुआ कि मैं जब गाना बनाया था और स्टूडियो में आया तो ऐसा लग रहा था कि मैंने गाना बनाया, मेरा गाना है। जब सोनू जी गाए हैं ऐसा लगा कि बेटी का शादी हो गई, परे घर में चल गए। इससे मुझे पहली बार किसी ने कहा है। और मेरा गाना नहीं है। Very simply, आई simple टोल्ड प्रिया जी कि प्रिया जी अभी मेरा गाना नहीं है, बेटी की शादी हो गई। नहीं गाना डेफिनेटली आप इसमें आप ही नहीं, बेटी की शादी होता जब बेटी अगर खुश रहती है तो खुशी खुशी होती है ना, तो मैं इतना खुश था। ऐसे और मैंने कहा ऐसे आदमी है, कौन से कंपोजर ने किस सिंगर के लिए कभी ऐसे कहा होगा, बट इट्स दिस इज हाउ ही इज एंड दिस इज व्हाई आई Serious goosebumps and honestly speaking कि इतने सारे इन्होंने हमको ऑप्शंस दिए थे। मुखड़े के लिए इन्होंने 10 ऑप्शंस छोड़े, अंतरा, सेकंड अंतरा, फर्स्ट अंतरा, लास्ट में जो वो आलाप जैसा एक है, इतने अच्छे से उन्होंने कंपोज करके वहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट था। तो मिक्सिंग के टाइम हमको प्रॉब्लम हो रहा था कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। तो मैं उमंग को फ़ोन करके बोला था आप ओनली वॉइसेस आप यूज़ करो। Maybe you should also come up with another version of it. आराम से हो सकता है। Yeah, I think you should. You are right.